بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سیاست ٹونائٹ کے آج کے پروگرام کے ساتھ میں ہوں شمائلہ چودھری۔ ہمارے آج کے ایجنڈا میں شامل ہے لاہور میں ہارس اینڈ کیٹل شو، وزیر اعظم شہباز شریف نے افتتاح کیا۔ پاکستان ترقی کے سفر پر، سیاسی اور عسکری قیادت ایک پیج پر، ٹرمپ کا جارحانہ رویہ، امریکی معیشت اور دنیا پر اثرات، سوابی میں پی ٹی آئی کا جلسہ کامیاب اور ناکام، اس پر ماہرانہ رائے دیں گے رضوان رضی صاحب اور امین حفیظ۔ واو، یو لک لائک اے یو بوائے، شرٹ اچھی لگ رہی ہے امین صاحب، کیا حال ہے آپ کے؟ حالانکہ میں نے آج نہ ٹائی لگائی نہ میں نے ریلیونٹ کوٹ پہنا۔ سازش ہے یہ کوئی؟ میں کیا ہارس اینڈ کیٹل شو شروع ہو رہا ہے، اس سے پہلے کہ امین حفیظ پگ پہنے، ہو گیا ہے، لاچا کرتا پہنے، آئے ہائے ہائے ہائے، پنجاب کی ثقافت کو اجاگر کروں۔ لاچا کلا سے پہلے انہوں نے جو سبز ہلالی پرچم کا رنگ ہے اس رنگ کی شرٹ پہن کے بتایا کہ سب سے پہلے میں پاکستانی ہوں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، رضی دادا اور رضی دادا کی جو شرٹ ہے نا وائٹ، وہ پاکستان کے پرچم میں جو اقلیتوں کی نمائندگی کرتی ہے نا وہ وائٹ، مطلب ہم دونوں قومی پرچم میں یوگنڈا چو آئی ہوں۔ نہیں دیکھیں نا، اسی جھنڈے دا وہ ڈنڈا ہو جی میں جھنڈا کھلوتا ہوں۔ صحیح۔ رضی دادا گانا یاد آ گیا ہے، اج میلہ ویکھنے آئیاں کڑیاں لاہور دیاں، رونق کے فورٹریس میں، جیسے بتایا امین صاحب نے، ہارس اینڈ کیٹل شو چل رہا ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ کیٹل شو تو ہر سال ہی ہوتا ہے، وہ ہمارے پروڈیوسر عرفان صاحب بتا رہے تھے کہ پچھلے سال بھی انہوں نے کور کیا، لیکن جو اس کی اونرشپ تھی جس طرح کی، اور جس طرح کے ایونٹس کو آرگنائز کیا گیا، اور یہ 1 ہفتے کا یا 5 دن کا ایونٹ ہے، آپ نے تو کور بھی بہت دفعہ کیا ہوا ہے، نشاد ساری عمر دیکھا بھی ہے اور کور بھی کیا ہے، صبح کے پروگرام بھی، خاص رات کو بھی، کیا زبردست۔ جب امین حفیظ جی سی لاہور میں پڑھتے تھے نا تو ان دنوں میں یہ غائب ہو جایا کرتے تھے راستے میں گھر جاتے ہوئے ہارس اینڈ کیٹل شو کے لیے۔ اچھا پھر یہ کیوں کہتے ہیں میلہ ویکھنا کڑیاں لاہور دیاں، منڈے کیوں نہیں؟ پھر میلہ دیکھنے کڑیاں کیوں جاتی ہیں، منڈے کیوں نہیں؟ وہ جو ہے نا، وہ نارووال کا لڑکا تھا نا، تو اس کی نظر سے لڑکیوں پہ تھی جس نے یہ گانا گایا۔ اس نے کہا مردانہ وارڈ میں نہیں دیکھتا۔ ہاں اچھا، تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ، لیکن جس طرح اس کو کمپریہنسولی آرگنائز کیا گیا ہے، اور مختلف ایونٹس جو ہیں، بلکہ دیکھیے نا، لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے شاپنگ فیسٹیول بھی اس کے ساتھ کنیکٹ کر دیا ہے، بہت ساری دکانوں کے اوپر 20-30% کی رعایت مل رہی ہے اس کے تحت۔ وہ جو دبئی شاپنگ فیسٹیول ہے نا، اس کے ماڈل کے اوپر۔ اچھا، پھر انڈسٹریل ایکسپو کا بھی اہتمام کر دیا گیا ہے ساتھ میں، اور یہ انڈسٹریل ایکسپو اس طرح کی نہیں ہوگی، یہ آرٹیزنز کی ہوگی، جو ہنرمند افراد ہیں ان کی اشیاء کا۔ اچھا، پھر سٹال لگائے ہیں وہاں، وہ ایکسپو کے اندر سٹال لگیں گے، اور اس میں وہ فنانس کرے گی حکومت پنجاب آرٹیزنز کو کہ وہ وہاں پہ اوپر آ کے اپنی مہارتوں کو کی نمائش کریں۔ اچھا، آج لاہور کے اندر آخری دن تھا 3 روزہ کتاب میلے کا، بالکل، اور اس کے اندر بہت رونق رہی، وہ بھی ایکسپو کے ایک ہال میں لگا ہوا تھا۔ وہ ہمارے دوست ہیں، وہ انہوں نے آج ہمیں انوائٹ بھی کیا ہوا تھا کہ آپ آئیں، اور رعایتی نرخوں کے اوپر کتابیں دستیاب ہوں گی۔ میں آج کو 3-4 کتابیں لے کے آیا ہوں خصوصی رعایت پہ، نہیں 1-2 تو انہوں نے مفتی پڑھا رہی تھی سر، لیکن 1-2 میں نے پھر احتیاطاً خریدی بھی نا، مناسب نہیں لگتا آپ وہاں پہ گئے تو۔ رضی دادا اس دفعہ جو ہارس اینڈ کیٹل شو کی مجھے خوبصورتی لگ رہی ہے نا، جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ چیمبر بھی شامل ہو گیا ہے، اور وہ اس میں لوگوں کو رعایت بھی دی جا رہی ہے، بہت سارے ایونٹ ہو رہے ہیں۔ پہلے جو ہارس اینڈ کیٹل شو ہوتا تھا نا، وہ ایک افتتاحی تقریب ہوئی، ایک اختتامی تقریب ہوئی، بیچ میں جو 3-4 دن ہوتے تھے اس میں مارننگ والے بھی ایکٹیویٹی ہوتی تھی، شام والی ایکٹیویٹی بھی ہوتی تھی، اور یوں ہارس اینڈ کیٹل شو اختتام پذیر ہو جاتا تھا۔ اس کے منسلک جو فورٹریس اسٹیڈیم لاہور میں صنعتی نمائش لگتی تھی، وہ ایک بہت بڑی اٹریکشن تھی۔ اب اس میں چونکہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اور وزیر اعلیٰ پنجاب، جو پنجاب کی دھی رانی ہے، وہ اتنا پیارے کام کرتی ہے ہر چیز کو منظم انداز میں۔ اس دفعہ جو میں بات کہنے جا رہا ہوں کہ ہارس اینڈ کیٹل شو
کوئی 4-5 दिन का ये शो नहीं नहीं है। इसको आज 9 फरवरी को प्राइम मिनिस्टर साहब शहबाज शरीफ साहब ने उसका इफ्तिताह किया है। मरियम नवाज शरीफ जैसे हाय 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 वजीर आजम और वजीर आला, मतलब चाचा और भतीजी साथ-साथ। जैसे बग्गी में बैठ के हाय 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 इतने खूबसूरत अंदाज में यूं आगे आ रही थी, रवायती अंदाज में, जो हॉर्स एंड कैटल शो की इफ्तिताई तकरीब में हमेशा से हम बचपन से देखते आ रहे हैं। क्या रंगो नूर की फजा होती है, चारों सूबों की वहां पर आपको कल्चर नजर आता ढोल है। की था आप हाँ, दो इसमें जो मैं खास बात बताने जा रहा हूं वो ये जो मैंने महसूस की कि इस दफा बच्चों के लिए खसूसी प्रोग्राम रखे गए हैं, मौसीकी के प्रोग्राम खसूसी रखे गए हैं, आर्ट एंड कल्चर के हवाले से उसकी तकरीबात अलग रखी गई हैं। वो कबड्डी मैच हाय 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 जो रवायती हमारे पंजाब के गबरू जवान कबड्डी मैच खेलते हैं वो भी दंगल रखा भी, गया है। कुश्ती भी है, नयाब दंगल भी। गाड़ियों का जो एग्जीबिशन है वो भी रखी गई है। रजी दादा इस दफा हाय 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 विंटेज कार जो है, मैं लेकिन कहता हूँ दो इसमें एक्टिविटीज आलमी लेवल की हैं। हाँ वही मैं कहने लगी हूँ कि सिर्फ पाकिस्तान से नहीं, बाहर दुनिया की टीमों ने भी 8 आके ज्वाइन मुख्तलिफ किया, ममालिक की टीमें जो हैं वो जो परफॉर्म करेंगे। नहीं वो उसमें आई हैं पार्टिसिपेट करने के लिए। टेंट पैगिंग जो होता है ओके, वो नेजाबाजी। नेजाबाजी का मुकाबला, उसके लिए फिर हमने जो वाइल्ड पोलो है, और हम उस शहर में बैठ के प्रोग्राम कर रहे हैं जहां पे कुतुबुद्दीन ऐबक नामी एक बादशाह तारीख के अंदर जिस पोलो खेलते हुए घोड़े से गिर के वो जहां भाग हुए थे, और वो ग्राउंड आज भी जिलानी पार्क का हिस्सा है और वहां पे आज भी पोलो खेली जाती है। वो इतना हिस्टोरिकल ग्राउंड है, 300-350 साल पुराना। तो वहां पे पोलो का वाइल्ड पोलो जो कि हमारी गिलगित की शंदूर मेले में उसका फाइनल होता है, वो फाइनल खेलने वाली टीम जो है उसको भी खास तौर पे, और पोलो का एक नुमाइशी मैच भी होगा, और ये अपनी जगह के ऊपर रहे। अच्छा, जो गिलगित से आए उनसे हमारी मुलाकात भी हुई थी। हाँ, हमारे स्टूडियो आए हुए थे, वो इस पे प्रोग्राम भी उन्होंने स्पोर्ट्स के प्रोग्राम के अंदर किया है। क्रिकेट के प्रोग्राम चल रहे थे तो साथ में उनको भी हमने पीटीवी ने मौका दिया, ज़ाहिर कौमी चैनल है तो वो उसको करेगा। अच्छा, इन दो के अलावा और भी एक्टिविटीज का एक बकायदा जिसको कहते हैं ना एक पूरा नेटवर्क तरतीब दिया गया है। बहुत खूबसूरती इस से मौके 4 महीनों से देखिए जी, ये जो पंजाब गवर्नमेंट है ये सीनियर वजीर जो है हमारी पंजाब की मरियम औरंगजेब, और उसके साथ हमारी उज़मा बुहारी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ साहबा, इतना जबरदस्त। हम तो देख रहे थे ना सेक्रेटेरिएट में जो महकमा बल्दियात है उसमें इसकी सारी तैयारियां हो रही थी। 4 महीनों से मैं कहता हूँ जी पाकिस्तान में पहली दफा जो ममालिक आ रहे हैं वो जो पाकिस्तान के साथ कुवैत है, नॉर्वे, कतर और सऊदी अरब, साउथ अफ्रीका और इवन अमेरिका की भी टेंट पैकिंग टीमें जो है ना वो हिस्सा ले रही हैं। और इस दफा मैं आपको ये भी बता दूं रजी दादा, हमारी शमैला तो माशाल्लाह ये मेजबान है हमारे प्रोग्राम की। आपको पता है घुड़सवारी कर सीखी है। और इस दफा बकायदा ये कहाँ देखा है आपने? मैंने कभी नहीं। नहीं, मुझे इतना पता था कि ये जहाज तो उड़ाती रही हैं, नहीं, घुड़सवारी भी करती रही बकायदा हैं। शाहसवार है भाई। अच्छा आपने कहाँ ऐसे नहीं देखा है? तो मुझे प्रोग्राम इस दफा इस टेंट पैकिंग बचना पड़ेगा प्रोग्राम आपसे। में खवातीन जो हैं वो हमारी बेटियां जो हैं वो भी उसमें हिस्सा लेने जा रही हैं। हाय 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 हाय, पिछली दफा मुझे इत्तेफाक हुआ था इन बेटियों का इंटरव्यू करने में। इनकी जुर्रत, बहादुरी, इनके बुलंद बाला हौसले, मैं कहता हूँ जी वो जो वो घोड़े पे आते हैं ना टकटक 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 टकटक, और यूं टारगेट को वो नेजा मारते हुए हाय 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 फजा में उछालते हैं, और जो कमेंट्री वहां पे हो रही होती है, आपका जोश और जज्बा। आज मैंने वहां पे जो इफ्तिताई तकरीब में रजी दादा जो हमारी साहिवाल की खूबसूरत नस्ल की भैंसें हैं, आय हाय हाय, जो मुझे वो देख के खुशी हुई, और वो बताया गया कि उनका जो दूध है आय हाय हाय डोल छोटा पड़ जाता है, दूध जो है उनका, और उनकी हेल्दी सेहत, और नाचती बकरियां, नाची बकरियां, हाय 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 हाय। मैं कहता हूं मुझे समझ नहीं आ रही, नाचती बकरियां, कुत्तों का शो, ये चल डॉग शो तो 18 को है। शो। लेकिन मैं आपको एक बात अर्ज करूं कि जब घोड़ा, मैंने भी घुड़सवारी की हुई है बचपन के अंदर काफी ज्यादा। मरी में जाके नहीं करते, पैसे नहीं, दे के। वो वाली नहीं, हमारा अपना फोटो के लिए करते
भाई बहावलपुर की रियासत के अंदर वो घोड़ा जो था, मैं उसके जॉकी के तौर पे उस पे बैठा था। देखिए रेस के भावलपुर अंदर, का नाम ठीक आया, है? आप मान लेते हैं। हाँ, और मतलब कि मतलब मरी में नहीं कभी घोड़े पे घोड़ा बैठे। हमारे पाकपतन का था, वहां से जीत के आया था। मरी वाले घोड़े पे मैंने नहीं की, लेकिन उस पे मैंने घुड़सवारी की हुई है। जब घोड़ा अपनी फोर्स पे आ रहा होता है ना, स्पीड पे जा रहा होता है, उस वक्त उसको हैंडल करना, वो जानदार है, बिल्कुल। ठीक है, उस वक्त उसको हैंडल करना और कंट्रोल करना बहुत महारत का काम होता है। इसलिए घोड़े के मालिक भी उस पे नहीं बैठते रेस के वक्त, वो जोकी को बैठाते, ठीक है। तो वो जो होती है ना महारत, असल में वो जिंदगी में भी काम आती है आपको, कि जब जिंदगी के मामलात को आप पूरी तरह अपने कंट्रोल में करना चाहें, तो वो भी बड़ा, और ये जिंदगी के ही असबाक है ना हमारे पास। देखिए आप एक टारगेट देखते हैं, टारगेट को फिक्स करते हैं और फिर उसको अचीव करने के लिए टकटक टकटक, जैसे हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब टारगेट आते उन्होंने अचीव किया, और वो बानी है, वो कौन बानी? वो बानी, ठीक है ना। और जिसने कह दिया था कि ये डिफॉल्ट हो जाएगा, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब का ये कहना था कि मेरी पहले दिन ये ख्वाहिश और कोशिश थी और मुझे नींद नहीं आती थी, और वो कहते थे कि मैं कहता था कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी जिंदगी में, मेरी हुक्मरानी में पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाए और मेरी कब्र पे लिखा जाए कि ये वो शख्स था जिसके दौरे हुकूमत में पाकिस्तान डिफॉल्ट हुआ। कहते मैं सारी रात रोता था, मेहनत आज इतनी मेहनत की मौशी टीम ने, और आज पाकिस्तान माशाल्लाह उड़ान आया है, उड़ान पाकिस्तान। आज उनके चेहरे के ऊपर एक इत्मीनान था, खास तौर पे उस वक्त जब दानिश स्कूल के बच्चे जो थे वो अपनी वो सुना रहे थे, एक्सपीरियंस बता रहे थे, परफॉर्म कर रहे थे, अपनी सक्सेस स्टोरी बता रहे थे। अब देखिए नेस्कॉम एक अदारा है ऐसा जिसके अंदर हम मिसाइल वो बच्ची थी, है ना, और मिसाइल बनाते हैं, और बड़ा हाईली उनका सख्त प्रोसीजर होता है सिलेक्शन का बच्चों के, और वहां तक पहुंचना कंपीट करके चिश्तियां के दूर दराज गांव की एक बच्ची का, ये मेरा मतलब है, इसका मतलब उसे प्रॉपर सही स्टैंडर्डाइज एजुकेशन मिली थी, तो ताकि वो नेशनल लेवल के ऊपर कंपीट कर सके। और वजीर आजम साहब ना बच्चों की तरह खुश हो रहे थे जब वो अपनी कहानियां सुना रहे थे, वो बच्चे, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और वैसे भी ये जो बच्चों के साथ, और ये हमारा ये दानिश स्कूल है, उस हवाले से मतलब बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, अपना बेबी है, और वो जब ऐसे को जो जिनके बेशतर के वालिदैन वफात पा चुके होते हैं, या उनके वालिदैन की जो माहाना इनकम है वो बहुत कम होती है, वो अपने बच्चों को, या उससे कम, हाँ, वो अपने बच्चों को इस तरह बड़े तालीमी इदारों में नहीं ले जा सकते, और यहाँ एजुकेशन के साथ साथ बोर्डिंग का भी इंतजाम होता है, खाना पीना फ्री होता है, बुक्स और यूनिफॉर्म फ्री होती हैं। मतलब वजीर आजम साहब ऐसे जब भी बच्चों को मिलते हैं, और ये बच्चे पिछले आप इंटरमीडिएट के एग्जाम देखें, उनमें बेशतर बोर्ड्स में और खसूसन लाहौर बोर्ड में टॉपर बच्चा जो है वो दानिश स्कूल का था। आज एक छोटी सी, हमारे दोस्त हैं जी आमिर जहांगीर साहब, उन्होंने रिफॉर्म्स के हवाले से एक रिपोर्ट जारी की है, मिशल उनकी तंजीम का नाम है, एनजीओ का, और वो जो हैं उन्होंने बताया है कि 11 महीनों का तक उन्होंने पेश किया, 120 रिफॉर्म्स जो हैं मुख्तलिफ शोबों के अंदर मुतारफ करवाई गई, और जिनमें गवर्नेंस, इक्तिसादी पॉलिसी, लीगल फ्रेमवर्क और अदारा जाती कारकर्दगी शामिल हैं। और ये जो है जिसमें ट्रांसपेरेंसी लाई गई है, इसका उन्होंने जायजा पेश किया है, और ये पहली दफा है कि ये जो रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं इनको डॉक्यूमेंट किया गया। आगे उसकी बहुत सारी डिटेल है उस रिपोर्ट के अंदर, और इसमें जो इसके नतीजे में सरकार ने जो कुछ हासिल किया है वो भी उन्होंने मेंशन किया है। तो आज के दिन ये रिपोर्ट जो है, अगर हमारे पास टाइम होता तो हम इसमें बड़ी डिटेल से बात करते। नहीं, हम ब्रेक ले लेते हैं ना पहले, तो फिर उसके बाद आप देखते हैं। यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक टू द शो। रजी दादा, आपकी बात, आप अपनी बात कंप्लीट कर लें। मैं बस उसमें ये बता रहा था कि उन्होंने ये बताया है कि हुकूमत ने 33% खवातीन की नुमाइंदगी जो है जी तमाम शोबों के अंदर और ख़ास तौर पे फेडरल गवर्नमेंट की जॉब्स के अंदर उसका अनाउंस किया, उसको इम्प्लीमेंट किया है। अफरात ज़र जो है वो मई में 38 से कम होके दिसंबर में 4.1 तक पहुंच गया। ज़र मुबादला के खैर 40 करोड़ डॉलर से बढ़ के 11 अरब 73 करोड़ डॉलर हो गए। जीडीपी की शरह नमू 0.29 यानी कि 1/4% से बढ़ के 2.38% हो गई है। और हम इस वक्त, मैं दोबारा कह रहा हूँ कि हम इस वक्त 3.85 की तरफ गामजन हैं। ठीक है, हो सकता है जून तक अगर यही ट्रेंड रहता है तो हमारी जीडीपी हम क्लोज करें 3.4 हमारी मईशत 3.5 बहुत के ऊपर। बेहतरी की तरफ जा रही है रशीद दादा, और इसी पे प्राइम पेंशन मिनिस्टर साहब ने रिफॉर्म कहा से है आइंदा 10 सालों में 1.7 ट्रिलियन रुपए की बचत मुतवक्को है। और फिर बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि उन्होंने काउंट डाउन की हैं कि जो हासिलात में शामिल है। और इसके साथ साथ दफ्तर खारजा ने कल इसराइल की वो की थी, मजम्मत की थी, लेकिन हमारी हुकूमत उस पर मुतमईन नहीं हुई। और आज वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार साहब ने बयान जारी किया है बाकायदा कि पाकिस्तान जो है वो इसकी मजम्मत करता है और कतन इस अमर की इजाज़त नहीं देगा। जिस तरह के ट्रंप साहब ने कहा है कि इसराइल अपना गज़ा जो है वो खाली करवाया जाए इनसे और वहाँ पे जो है वो तो ट्रंप साहब के ऐसे ही मुझे तो बहुत का ट्रंप साहब जो है ना वो KPK के वजीर आला लगते हैं। ऐसे ही बरके मार देते हैं, ऐसे ही ऐलान कर देते हैं। मतलब उनको पता ही नहीं है कि वो कितनी बड़ी रियासतों के एक मजमुए के एक खूबसूरत एक बड़ी ताकत के वो प्रेसिडेंट हैं। वो ऐसी बातें कर देते हैं बात का। बहरहाल मतलब ठीक है जी, नया नया बंदा इलेक्ट होके आया हो तो थोड़ा तो वो फरफराता है ना। वो पहली बार थोड़ी आए, दूसरी बार आए हैं। चलिए उनके इस जारहाना रवैये पे भी बात करेंगे। अभी हम अपने मुल्क की मईशत की बात कर रहे थे रज़ी दादा, जैसे आपने बताया, इस पर प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी ये बोला है कि मुल्क की तरक्की के लिए सियासी क़यादत हो या अस्करी, हम सारे एक पेज पे हैं और अब पाकिस्तान को खुशहाल बनाकर ही दम लेंगे। देखिए बात ये है कि ये मौका जो इस वक्त हम मुआशी तौर पे हैं, इसको आप कह लें कि आप टेक ऑफ स्टेज कह सकते हैं। बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, ये मौके पहले भी पाकिस्तान की जिंदगी में काफी दफा आते रहे हैं, लेकिन साड़ा हासा निकल जाता है इस तरह के मौके। ठीक है, अगर बीच में गैप नहीं आता 2018 के बाद तो अब हम कहीं और होते। आई विश, मुझे ये लगता है, ये मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मेरा ये तासुर है कि कल का जो जिस तरह मुस्तरद हुआ है एहतजाज, स्वाबी वाला नहीं, पूरे पाकिस्तान में दी हुई थी ना कॉल। लेकिन मतलब है कि स्वाबी में जरा हो गया। अपनी नाकामी के बाद इल्जाम आप घर में सफाई करने वाली चौकीदार और ड्राइवर तीनों को खड़ा करके अगर साथ में गुब्बारे पकड़ के खड़े होके अगर आप एहतजाज कर रहे हैं और वहीं पे नारे लगा रहे हैं, इसका मतलब है दाने मुक गए ने। ठीक है ना, यानी आपके अंदर इतना भी हौसला नहीं हो रहा कि आप सड़क पे निकलें। फिर एक साहब का कॉलेज है बच्चों का, वो कॉलेज के बच्चों को खड़ा करके नारे लगवा के वीडियो बनवा के सोशल मीडिया पे डाल के और आराम से गाड़ी में बैठ के घर चले जाते हैं। तो ये जो हुआ है, मुझे ये लगता है कि इसने हुकूमत के एतमाद में बहुत इजाफा किया। यानी आप परसों की स्टेटमेंट के मुकाबले में 3 दिन की एक्टिविटी थी ना जी, परसों भी थी कज़ाफी स्टेडियम का इफ्तिताह, कल मैच था, आज लाहौर के अंदर ये था। परसों जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने स्पीच फरमाई थी, उसके मुकाबले में उनकी आज की स्पीच की बॉडी लैंग्वेज भी डिफरेंट थी और लैंग्वेज भी डिफरेंट थी। सही, आज तो होती है जब आज की इसके अंदर कॉन्फिडेंस ज्यादा मुझे नजर आया। ये नहीं कि परसों को कॉन्फिडेंस लैग कर रहे थे, मतलब मुझे ऐसे महसूस हुआ, या कम से कम मेरी फीलिंग, मुझे ऐसे महसूस हुआ कि वो ज्यादा अपने आप को पूरे एतमाद और एतमाद याफ्ता महसूस कर रहे हैं। आज के अल्फाज का चुनाव भी उनका बहुत मुनासिब था और उसके अंदर फ्यूचरिस्टिक फील आती थी कि वो मुस्तकबिल के हवाले से क्या देख रहे हैं और साथ में सबको साथ लेके चलने का जो उनका एक अंदाज है। आप उस पर तनकीद कर सकते हैं, आप उनसे इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन उनका वो है ना कि हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो,
चलो तो सारे जमाने को साथ साथ लेके लेके साथ लेकर चलो। बात यह है कि रज़ी दादा प्राइम मिनिस्टर जो है ना, मैं समझता हूँ कि वो बार बार एक साल में इस बात का अयादा कर चुके हैं कि जब भी हम उड़ान पकड़ने लगते हैं, मईशत मुस्तहकम होती है, तरक्की का सफ़र शुरू होने लगता है, तो एक मखसूस टोला, एक मखसूस फसादी जमात जो है वो ऐसी हरकतों पर आ जाती है कि जिसका टारगेट जो होता है वो पाकिस्तान की मईशत को कमज़ोर करना, पाकिस्तान के जमहूरी अदारों को कमज़ोर करना, पाकिस्तान की हुकूमत को के खात्मे का नारा लगाना। और यही बातें आपने स्वाबी के जलसे में देखी हैं कि KPK के वज़ीर आला की लैंग्वेज देख लें, उनके PTI के चेयरमैन गौहर साहब की अल्फाज देख लें, उनके मतलब वो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं कि जिस पर प्राइम मिनिस्टर साहब का ये हमेशा से है कि जब हम तरक्की के सफ़र की तरफ जाएं, हम अंधेरों से निकल के जब उजालों की तरफ आते हैं और हम तरक्की की उड़ान भरने लगते हैं, तो कोई उनकी टांग खींच देता है। मैं इसमें ना इस मौके के ऊपर एक तो बात ये नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना आप चाहिए। जो आपने कहा है ना कि चीजों नहीं, मैं टांग आपकी क्या बात कहेंगे को मैं रज़ी आगे दादा, बढ़ा अब रहा आवाम को भी ये बात समझ आ गई है, अब मैं वो इनकी जलसों में बात को जाने आगे से ये बढ़ा छोड़ रहा हूँ। वो दिया। चीजों को जो मिस इंटरप्रेट करने का एक है, मसलन IMF का वफ्द पहुंच गया जी। और उन्होंने अपने शेड्यूल के अंदर कहा है कि हमने जुडिशल कमीशन से भी मिलना है, हाँ। और चीफ जस्टिस साहब से भी मिलना ठीक है। उसके साथ ही कुछ इंटल कचूल हजरात जो है, बल्कि मैं उन्हें इंटल कचवल भी कहूंगा, वो इंटल कचूल हजरात जो है उन्होंने शोर मचा दिया, जजेस की तकर्री के तरीकाकार का जायजा। अरे भाई, सैंडिक का नहीं, ये जो रिकॉर्डिक का प्रोजेक्ट किसने खराब किया? ठीक है, मैं कुछ नहीं कह रहा, किसने खराब किया? अच्छा, उसके बाद आप जरा रिफॉर्म्स गिनते जाइए ना। एक हाउसिंग स्कीम को 2000 एकड़ जमीन बख्श दी आपने, 460 अरब रुपए ने किसने बख्शी? यानी जब मेरा मतलब है कि इतनी नेकड और इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल इंटरफेरेंस होगी फाइनेंशियल मामलात के अंदर, तो IMF कहेगा भाई जनाब आप भी स्टेक होल्डर हैं, तो बताइए आप ये जो फाइनेंशियल रिफॉर्म्स हैं इनको रिवर्स तो नहीं कर देंगे? सही। वो फाइनेंशियल रिफॉर्म्स के हवाले से मिलना चाह रहे हैं, और हमारे दोस्तों ने जो इंटेल कचूल अपनी सोच हजरात के accordingly। हैं शोर मचा दिया कि जी जजेस की तकर्री। मेरा मतलब है फॉर गॉड सेक यार, पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने कानून साजी करके, जो कि कानून साजी काबिल नजरसानी नहीं है, सही। ठीक है, रिफॉर्म ये जो है 26वीं तरमीम की है, और उस 26वीं तरमीम के तहत जजेस की तकर्री हुई है। बिल्कुल ऐसे ही है। आइन और कानून के और मुताबिक अगर उसमें कोई तब्दीली होनी है उस तरीकाकार के अंदर, तो दोबारा वही प्रोसेस जाए। वही पार्लियामेंट से होनी है। बिल्कुल सही। ठीक है, तो आप जो हैं अपने आप को खुश करने के लिए और डॉलर कमाने के लिए और लोगों को झूठ बताने के लिए कि जनाब IMF का वफद आ रहा है और वो जजेस की तकर्री का जायजा झूठ से लेगा, डॉलर आ मेरा रहे तो हैं, हासा ही इसीलिए निकली तो- जा रहा है इसीलिए यार। हालांकि तो IMF का रज़ी वफद दादा- 6 फरवरी से यहाँ पर है, 14 फरवरी तक रहेगा, 9 रोजा उनका ये दौरा है, और ये शेड्यूल दौरा है, और उसके मुताबिक वो अपनी रिपोर्ट भी इसके साथ ही जुलाई में पेश करेंगे। 16 वजारतों के साथ उनका इंटरेक्शन उनका इंटरेक्शन है, उसमें एक चीज उठाते हैं, जैसे आता है ना कि वो नमाज के करीब मत जाएं। हाँ, बस ऐसे ही झुक लेंगे। जब आप मतलब वुजू ना किया हो, पाक साफ ना आप, हो, मतलब इस नशे की हालत में। नशे की हालत में हो। तो ये एक फिक्रा उसका उठाते हैं। ये फिक्रा इसलिए उठाते हैं क्योंकि रज़ी दादा ने अभी तो बोला कि वहां से डॉलर आते हैं। इस तरह की बात झूठ करने से, देखिए, इस तरह का की झूठ बात फैलाने से। इस तरह का झूठ फैलाने से, तब भी तो ये झूठ फैलाने वाले को रज़ी दादा जैसे आपने क्लियर किया पीका एक्ट से प्रॉब्लम हो रही। हाँ, इस तरह के इसलिए- नासर को पीका एक्ट से प्रॉब्लम। जी तो मैंने कहा इस बात को हम क्लियर कर दें, क्योंकि आइंदा 2 दिन हमारा प्रोग्राम तो अब 4 दिन के बाद होगा ना जी। अगला, तो आइंदा 2 दिन इस प्रोपेगंडे के अंदर इतनी हवा भरी जानी है कि जनाब वो जजेस की, क्योंकि खास तौर पे हमारे जो रिपोर्टर्स भाई हैं, उन्होंने अब इस बात को लेके दौड़ पड़ना है, क्योंकि उनके जो कायद है ना, हाय हाय हाय, उन रिपोर्टर्स के जो कायद हैं ना, कायद डॉलर हैं, माफिया के जो कायद मफादात हैं, वाले, उन्होंने ये पोस्ट की है। हालांकि मैं आपको वहाँ बताऊं, से। प्राइम मिनिस्टर साहब की ये जो अभी शुमाइला ने सवाल पूछा था, मैं उसको थोड़ा हम जरा खोल के तरक्की के बयान सफर करते के लिए हैं। सारे इदारे एक तरक्की के साथ हैं। सफर की बात प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि देखें, अब हम तरक्की की तरफ जा रहे हैं, अंधेरों से उजाले की तरफ निकल आए हैं, और वो कहते हैं कि मेरी ख्वाहिश है, मतलब मैं चाहता हूं कि जो मुख्तलिफ टैक्सेस हैं, मैं 15% उसमें फौरी तौर पर
कमी का ऐलान कर दूं। टैक्स को 15% तक ले आऊं, क्योंकि अब टैक्स 35% भी बाज स्लैब हैं, मगर उसको मतलब वो कम कर 15 पे ले अच्छा, फिर मतलब वो ये कह रहे हैं कि मैं जो कुछ करने जा रहा हूं ये बंद कमरे में ब्यूरोक्रेसी के साथ बैठ के हुकूमत फैसले नहीं कर रही। उन्होंने कहा है कि पहली दफा हुआ है कि सरमायाकार सनतकारों को मुशावरत के साथ सही। चीजें तय की जा रही हैं। और उन्होंने स्पेशली तनख्वाहदार तबके की बहुत तारीफ की कि जब हम मुश्किल वक्त में थे, महंगाई करनी जरूरी हो गई, बजट तरामीम की, तो तनख्वाहदार तबके ने और ताजर बरादरी के एक बड़े ग्रुप ने, मतलब उसमें कुछ ऐसे भी होते हैं जो टैक्स देते नहीं, जिसकी अक्सर रजीदादा साहब निशानदेही करते हैं कि वो खास मखसूस हालात में बाहर निकलते हैं, खापर होला डालते हैं और एंड में दिया लिया कुछ नहीं और एहतजाजों की ऐलान शलान करके हुकूमत को डरा डरू के पीछे हट गए। लेकिन मौजूदा हुकूमत शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में अब मामलात को समझ चुके हैं, अब वो आगे बढ़ रहे हैं और इसी आगे बढ़ने के सफर में उनका ये कहना है कि पाकिस्तान में अब हमें ये सवाल पूछना चाहिए कि जब हम तरक्की की तरफ जाते हैं दहशतगर्दी के वाकयात क्यों लौट आते हैं। और आप इसमें अंदाजा करें कि दहशतगर्दी में पिछले हफ्ते में 2 हलाकतें बहुत हाई प्रोफाइल हुई, यानी बादगीस के डिप्टी गवर्नर का साहबजादा और उसकी लाश वसूल की गई परली तरफ, और एक इसी लेवल का बच्चा उसके बाद गुमराह था बच्चा, और उसकी भी डेड बॉडी पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान के हवाले करने की कोशिश कर रहा है कि ये आपके करतूत हैं, इनको समेटिए, इनको वसूल कीजिए। आप अंदाजा कीजिए कि अब दुश्मन डेस्परेट होकर किस लेवल पे आ गया। आप ये वाला मरहला जो होता है ना कि बच्चे आपने मैदान में उतार दिए अपने, ये आखिरी मरहला होता है, आखिरी होता है, बिल्कुल ठीक है ना। और अभी जो था ये जो कुछ अफगानी जो हैं वो फिर एहतजाज के अंदर पकड़े गए हैं, उनको भी हमने कहा है कि चले आप अपने मुल्क चले, वहां पे बड़ी दूध और शहद की नहरें बह रही हैं वहां पे, तो आप जरा वहां पे वापस चले। कल मैं देख रहा था अफगान हुकूमत के जो खारजा के तर्जुमान हैं वो अमेरिका के एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे, जिस लजाजत के साथ, जिस हम्बलनेस के साथ वो उनकी मिन्नत तरला कर रहे थे कि आप यूएसएड के तहत हमारी इमदाद ना रोके, $3 अरब तक सालाना बराह रास्त और एनजीओ के जरिए अमेरिका अभी भी खर्च कर रहा है। अच्छा रसीदादा, ट्रम्प का ये जो जारहाना रवैया है, इससे अमेरिका की करेंसी, मईशत और पूरी दुनिया पर क्या इफेक्ट होंगे, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ लेनी है हमें छोटी सी ब्रेक। हमारे साथ रहिएगा। हर साल 9 फरवरी को कश्मीरी अवाम मोहम्मद अफजल गोरू का यौम शहादत मनाते हैं। मोहम्मद अफजल गोरू को 9 फरवरी 2013 को दिल्ली की बदनाम ज़माना तिहाड़ जेल में फांसी दी गई। मोहम्मद अफजल गोरू का वाहिद जुर्म कश्मीर पर भारत के नाजायज कब्जे के खिलाफ आवाज उठाना था। अफजल गोरू की शहादत ने कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी में नई रूह फूंक दी। अफजल गोरू और दीगर शहदा की कुर्बानियां कश्मीरियों के लिए मशअल राह हैं। वेलकम बैक टू द शो। रसीदादा, जाने से पहले जो मैं आप पे क्वेश्चन छोड़ के गई थी कि ट्रम्प के जारहाना रवैया, इसका मतलब आपकी वाकई अब मेमोरी जो है ना अफेक्ट हो रही है, लॉस हो गया, लॉस हो गई। ब्लड प्रेशर की दवाई की ब्रेक थी, ब्लड प्रेशर की दवाई का यही होता है ना। अच्छा जी, उनका जो जारहाना रवैया है, मैं रिपीट कर देती हूँ। मैं समझ गया, ठीक है। देखिए ट्रम्प साहब जो हैं उनकी आला कारकर्दगी के जो नताइज हैं वो अमरीकी अवाम को तो महसूस होना शुरू हो गए। ठीक है। उसकी वजह ये है कि अगर हुकूमत पाकिस्तान ऐलान कर दे आज के दिन कि मोबाइल जो हैं उनके ऊपर हम 100% टैक्स लेंगे, सही, ठीक है ना, क्या नतीजा निकलेगा उसका? मोबाइल 100% महंगा हो जाएगा कि 10,000 का मोबाइल है, हम उस पर 10,000 ही टैक्स लेंगे। मोबाइल, कौन सा मोबाइल 10,000 का? मैं वैसे बात कर रहा हूँ मिसाल के तौर पे, सही मिसाल दें। मैं वैसे मिसाल के तौर पे 10,000 का मोबाइल है, हम 10,000 पर टैक्स लेंगे।
وہ موبائل 20,000 کا نہیں ملے گا کنزیومر کو, وہ موبائل 22 سے 25,000 کا ملے گا, کیونکہ باقی دکاندار نے اپنے مزید خرچے بھی اس میں ڈالنے ہیں. بالکل, انہوں نے کہنا نہیں بجلی کا بل بڑا آ گیا سی میں موبائل, ہاں رینٹ, ٹریولنگ, وہ سب کچھ حالانکہ انہوں نے پہلے بھی ڈالا ہوتا ہے. خالی ہاں، گورنمنٹ بعد کا میں ٹیکس نہیں ہوتا, للے تو للے بھی آ جاتے ہیں اس کے اندر, ان سین ٹیکس ہوتے ہیں. اب جو وہاں پہ انہوں نے کینیڈا سے بہت ساری چیزیں آتی ہیں, ٹھیک ہے, کینیڈا سے آپ وہ ان کا جو آئل ہے, مطلب آپ کو پتا ہے کینیڈین نے اپنے ہاں آئل ریفائنری نہیں لگنے دی کہ ہمارا ماحول خراب نہ ہو, اور وہ آئل خام تیل جو ہے وہ امریکہ کو بیچتے ہیں, اور امریکہ سے ریفائن شدہ آئل, پیٹرول وغیرہ اپنی ضرورت کے مطابق واپس خریدتے ہیں. صاف ستھرے لوگ, پائپ لائن میں تیل جا رہا ہے اور پائپ لائن میں ہی پیٹرول آ رہا ہے. ہائے ہائے ہائے. ٹھیک ہو گیا. اب اگر آپ اچھا ادھر تو کوئی پائپ لائن نہیں پھٹتی دھماکے سے, ہمارے یہاں پھٹ جاتی ہے. آپ نے لگا دیا اس کے اوپر ٹیکس, اب وہ ٹیکس دے گا کون؟ وہاں کا کنزیومر دے گا, ٹھیک ہے. اب وہاں کا کنزیومر جو ہے, جو کہ ان کا فالوور ہے, اسے اب اس کو تو یہ کمپنی ہینڈ ہی نہیں ہو رہا, وہ کہتا کمپنی دے گی, کمپنی نہیں دے گی بھائی جان, آپ دیں گے. تو افراط زر کا پہلا فلڈ گیٹ تو انہوں نے دیا ہے کھول. اب وہ اس کو چاہیں گے یا کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو کنٹرول کریں گے, جو انکم ٹیکس ہوتا ہے اس میں کنسیشنز دے کے, اس کے اندر کچھ ایڈجسٹمنٹ کر کے, لیکن افراط زر جو ہے وہ انکم ٹیکس کوئی ایڈجسٹمنٹ سے کنٹرول نہیں ہو سکتی. یہ معیشت کا بنیادی اصول, ٹھیک ہے. اتنی معیشت تو ہم بھی جان گے آپ کے ساتھ رہ رہے ہیں. آپ اگر اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کی معیشت جو ہے وہ سکڑاؤ کا شکار ہو جائے گی, معیشت سکڑنا شروع ہو جائے گی, بے روزگاری کی شرح بڑھ جائے گی, ٹھیک ہے. امریکہ کے ساتھ جو مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ جتنے امریکہ نے افغانستان کے اندر 20 سال میں پیسے خرچ کیے ہیں, اس کے برابر انہوں نے کرونا کے 1.5-2 سال کے اندر اپنے لوگوں کو کیش سبسڈی دے دی. اب وہ بغیر کام کے ملے ہوئے پیسے تھے, معیشت میں کسی جگہ پہ وہ ایڈجسٹ ہی نہیں ہو پائے, کبھی سرکل میں نہیں آئے نا, سرکولیشن میں نہیں آ پا رہے. کہیں پہ انہوں نے وہ جو بٹ کوائن ہے اس کی قیمتیں بڑھا دی, کہیں پہ انہوں نے افراط زر سٹاک مارکیٹ کو جیک اپ کر دیا, یعنی وہ ریئل ارن منی نہیں تھی. نتیجے کے طور پہ وہ پیسے جو ہیں وہ ابھی تک ان کی معیشت کے کسی حصے کے اندر بیٹھ نہیں پا رہے. ان کی وجہ سے ایک تو ڈیو تھا افراط زر کا, اس کے تھوڑے تھوڑے نشانات بائیڈن صاحب بھگت کے گئے ہیں الیکشن کے اندر, اب اس کی پیک ہونے جا رہی ہے, اور اوپر سے ماشاءاللہ سونے پہ سہاگا کر دیا انہوں نے امریکی عوام کی زندگی عذاب کرنے کے لیے. اب یہ امریکی عوام کی زندگی تو عذاب ہوگی, دنیا کے افیکٹ اب بھی عالمی طور پہ 3 اقدامات کا انہوں نے اعلان کیا, اور تینوں, ایک کینیڈا کے ریلیٹڈ, ایک میکسیکو کے ریلیٹڈ, ایک چین کے ریلیٹڈ, اور تینوں سے انہوں نے ایک مہینے کے لیے سسپینڈ کر دیں, اعلان میں کر دیا. وہ مجھے پیارے افضل یاد آ گئے. وہ پیارے افضل جو تھے نا, وہ سیکٹری رہے ہوئے تھے یا ڈپٹی سیکٹری رہے ہوئے تھے الیکشن کمیشن کے, تو وہ انہوں نے آ کے 2013 کے الیکشن کے بعد کہا ثبوت میرے پاس کوئی نہیں ہے, اور یہ بھی نہیں پتا کیسے ہوئی ہے, لیکن دھاندلی ہوئی. ٹھیک ہے, وہ بالکل مجھے وہ ٹرمپ صاحب کو دیکھ کے پیارے افضل یاد آ جاتے ہیں, جس طرح کی وہ سٹیٹمنٹ دیتے تھے. ٹرمپ بھائی جو ہیں ہمارے بڑے محترم ہیں, وہ بھی اسی طرح کی بیانات جاری کرتے, اور پھر ان بیانات سے دوڑ بھی لگا جاتے. ظاہر ہے جب فیڈ بیک آتا ہے, ریئیکشن آتا ہے پبلک کا, اور ان کو پتہ چلتا ہے کہ میں نے اعلان تو بھرا کر دیا, آئے ہائے ہائے ادھر ادھر بیٹھنے والوں نے کیا جی آئے ہائے ٹرمپ صاحب انی پاتی تسی ایڈی ہیڈ لائنیں چھپ گئی ہیں سارے اخباراں وچ, لیکن جس نے پتہ لگ گیا پھر سسپینڈ کرتا ہے. ابھی تک کسی کو انتظار ہے ٹرمپ صاحب کی کال آئے گی, اور کل سعودی کے جلسے میں کہہ بھی دیا کہ ہم امریکی جو ہے نا ہیلپ اس کے منتظر نہیں ہیں, نہ ہم رہائی کے لیے, نہ ہم رہائی کے لیے قاسم کے ابو کی, نہ ہم رہائی کے لیے مذاکرات کر رہے تھے. ہم تو پاکستان میں آئین, قانون اور جمہوریت کی بحالی کے لیے مذاکرات کر رہے تھے. آئے ہائے ہائے صدقے جاواں بھاگ لگے رہن, جوریاں سلامت رہن. اچھا امین صاحب, ٹرمپ کی بات ابھی چل رہی ہے, ان کی تو کبھی نہ ختم ہونے والی ہے. اب ٹرمپ کو بھی پتہ چل گیا یہ میرا نام جو ہے نا یوز کرتے ہیں, رانگ نمبر ہے یہ. مسلم ممالک جو ہیں یا مسلم دنیا میں جتنے بھی مسلم ممالک ہیں, ان کو لے کے ٹرمپ کی کسی پالیسیز میں کوئی چینج آئے گا؟ دیکھیں جی, جہاں تک میں آپ کو بتاؤں, اسرائیل کے حوالے سے آیا تو ہے,
جہاں میں آپ کو بتاؤں کہ یہ مسلم ممالک ہے نا، یہ یاری دوستی اپنی جگہ ہے، مفادات یاری آپ کی؟ امریکہ کے ساتھ نا، وہ تو ہماری بھی ہے، اسلامی ممالک کی بھی ہے، سب انٹرنیشنل لیول پہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ چلنے پر مجبور ہوتے ہیں. کہیں سے ہم ان سے فائدے لے رہے ہوتے ہیں، کہیں ہم ان کی ٹیکنالوجی سے مستفید ہو رہے ہیں، کہیں وہ ہمارے جو ہے وہ ہمارے ہم سے بھی وہ فائدے لے رہے ہوتے ہیں، اور ہم فائدے دے بھی رہے ہوتے ہیں. اقوام عالم میں یہ کوئی مطلب ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت تو نہیں ہے نا کہ ہم نے دنیا کے ساتھ تعلقات خراب کر کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم کہیں جی ہم سب کچھ خود ہی دودھ کی نہریوں میں بہائیں گے، کٹا پالیسی بھی چلائیں گے، مرغی پال سکیم بھی چلائیں گے، اور یہاں سے ہی مرغی آئے گی، انڈا آئے گا، انڈوں کے اوپر مرغی بیٹھے گی، پھر وہ اتنے چوزے نکلیں گے، وہ بڑے ہو جائیں گے. ہائے ہائے ہائے، مطلب خیالی دنیا کی وہ ان کی معیشت کا پلاننگ تھی. بات یہ ہے کہ اسلامی ممالک جو ہیں، آپ یہ دیکھ لیجئے گا، جب بھی بات اسلام اور اسلام کی علم برداری کی بات آئے گی، تمام مسلم امہ جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم پر ہوئے گی. غزہ کے اوپر بھی انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ سلامتی کونسل کی جو قرارداد ہے 2 ریاستی، اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے، اس پر بات نہیں ہو سکتی. نہ یہ بات مانی جائے گی کہ غزہ خالی کر کے فلسطینیوں سے ان کو آسانی سے محبت سے وہاں سے ان کا انحلا کر دیا جائے. اسلامی ممالک ہونے نہیں دیں گے. پاکستان بالکل اس کی قیادت کرے گا اور غزہ کے فلسطینیوں کی جو ہے جو امداد ہے وہ ہم ان کے ساتھ ہم ان کے ساتھ ہیں. ایک انڈکلیئرڈ قسم کی جو کسے کہنے چاہیے کہ اس حوالے فرنٹ کے اوپر اتنا ری ایکشن اسلامی ممالک کی طرف سے اسرائیل کی قتل و غارت گری کے دوران نہیں آیا جتنا اب اتنا ری ایکشن اس پہ آیا. یعنی ایم بی ایس کا سٹیٹمنٹ آنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اور ان کے وزیر خارجہ کا، محمد بن سلمان صاحب کے وزیر خارجہ کا کلیئر ورڈ کے ساتھ کہ نہ ہم اس بات کو ہونے نہیں دیں گے. مطلب کہ یہ کہ ہم مسترد کرتے ہیں، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، نہیں، کیٹیگوریکلی کہ ہم اس بات کو نہیں ہونے دیں گے. اور وہ جب یہ بیان کر رہے ہیں اور اس کے فوراً بعد ہمارا دفتر خارجہ پرسوں یہ بیان دے چکا ہوا ہے، لیکن اس کے فوراً بعد سعودی وزیر خارجہ کے بیان کے فوراً بعد پاکستان کے وزیر خارجہ جناب اسحاق ڈار صاحب جو ہیں، ان کا بیان آنا اور انہوں نے اپنے بیان کے ذریعے انڈورس کرنا ان کو. سر یہ ایک انڈکلیئرڈ قسم کی صف بندی ہو رہی ہے اگر آپ ملاحظہ فرمائیے تو. صحیح بات ہے. سعودی عرب جو ہر کانفرنس کے اندر کسی اور کو بلائے یا نہ بلائے، وہ ہمارے وہ عرب لیگ کی کانفرنس ہے اور پاکستان اس کے اندر جو ہے وہ ہم پھر رہے ہیں، اس کے اندر شریک ہیں باقاعدہ. او آئی سی کی کانفرنس ہمارے بغیر مکمل نہیں ہو رہی. ایم بی ایس صاحب کی خصوصی دعوت ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم آئے اور پھر وہ اس کانفرنس کو آگے چلائیں. سرمایہ کاری کی کانفرنس ہوتی ہے. دیکھیے نا پچھلے 1 سال کے اندر ہر فورم پہ جا کے یہی بات کی ہے. 6 یا 7 ہمارے پرائم منسٹر صاحب کے سعودی عرب کے دورے ہیں اور سارے اسی طرح کے ایونٹس کے حوالے سے ہیں. ٹھیک ہے، 2 طرفہ تعلقات کے حوالے سے تو ابھی ایم بی ایس صاحب کا دورہ ڈیو ہے ہمارا. ٹھیک ہے، لیکن یہ جو ہے، یہ جو ملٹی لیٹرل دورے ہیں، یہ سارا ہوم ورک کرنے کے بعد ہی یہ بیان ہوا ہے کہ ہم یہ ہونے نہیں دیں گے. بالکل نہیں ہونے دیں گے، ہوگا بھی نہیں. امین صاحب، آپ کی فیورٹ ترین پارٹی اچھا کسوابی میں شو کامیاب تھا، ناکام تھا؟ اگر ناکام تھا تو غلطیاں کس کی تھیں؟ الزام کس پہ آ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، اس بارے میں جو سوابی والے ہیں نا، ان کی جو بہت اچھے دوست ہیں نا ہمارے پروگرام میں بیٹھے ہوئے ہیں، رضی دادا ہیں. رضی دادا ان کی بڑی خوبصورت تعریف کریں گے کہ وہ کتنا خوبصورت شو تھا ان کا. وہ جس طرح کی تعریف کریں گے وہ میں جانتی ہوں، کتنے وہ مقاصد حاصل کر پائے. میں آپ کو بتاؤں، جب قاسم کے والد محترم کو سزا ہوتی ہے، وہ باقاعدہ ملزم سے مجرم کے کٹہرے میں آتے ہیں. آپ دیکھیں پورے پاکستان میں کیا ری ایکشن آیا جب ان کی اہلیہ محترمہ بشرا بی بی کو گرفتار کیا جاتا ہے، سزا سنائی جاتی ہے اور جیل میں ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. مجھے بتائیں، پی ٹی آئی کی اتنی بڑی قیادت پورے پاکستان میں، جن کا دعویٰ ہے کہ ہم سب سے بڑی سیاسی جماعت ہیں اور ہم سے بات کرتے وقت ذرا دھیان سے بات کریں، ہم بہت زیادہ ووٹ لے کر آئے ہیں. کیا ہوا ہے؟
मतलब पार्टी के सरबराह और सरबराह की अहलिया मोहतरमा दोनों के ऊपर जो हुआ, और फिर जो स्वाबी के हवाले से पूरे पाकिस्तान में बहुत बुलंदो बाला दावे किए गए कि सड़कें बंद हो जाएंगी, अन्नी पड़ जाएगी, निजामे ममलकत खुदा दादे पाकिस्तान जो है वो माँ बच्चे को नहीं संभालेगी। क्या हुआ, क्या हुआ? सारी दुनिया ने देखा, सारे पाकिस्तान ने देखा, इधर जिसको कहते हैं ना उड़ान पाकिस्तान, तमीरे तरक्की पाकिस्तान मनाया जा रहा है, और दूसरी तरफ यौम स्याह मनाया जा रहा है। यार शर्म करनी चाहिए। वैसे मैं ये हमारा अर्ज करूं- प्यारा वतन है, इसकी साथ ही हमारी पहचान है, इसकी तरक्की के साथ ही हमारी तरक्की है। अगर ये खूबसूरत पाकिस्तान देखें आज, मतलब पॉलिटिकली लड़ाई, आपकी सियासी जो जद्दोजहद है वो उसको जरा साइड पे रख दिया। जब बात हो पाकिस्तान की तो फिर पाकिस्तानियत आपके अंदर आनी चाहिए। छोड़ दे 2 मिनट के लिए सियासत आपकी, अल्लाह ताला आपको भी जिंदगी दे, सेहत, और अब तो आप देसी मुर्गी खा रहे हैं, आपको क्या मसला है? पहले भी आप- खा रहे थे, मटन खा रहे हैं। फिर कहते हैं जी मेरी वो वर्जिश की मशीनें छीन ली हैं, मुझे बंद कमरे में रख दिया है। अब देखें ना, कहते हैं हाथ लिख दिए, डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल ऑन द बिहाफ ऑफ आईजी प्रिजन, ही कैटेगोरिकली अनाउंस्ड कि जो जेल के जो जेल मैनुअल है उसके मुताबिक किसी कैदी का वो हवालाती हो, वो मुजरम हो, उसका जेल की हदूद में, जेल में बतौर कैदी रहते हुए हाथ लिखने का एक प्रोसीजर है कि वो सुपरिटेंडेंट जेल से कागज और पेन का मुतालबा करता है कि मैंने कुछ लिखना है, उसको वो कागज और पेन दिया जाता है, वो जो कुछ भी हाथ लिखना चाहे। क्या पता चोरी से रखा हुआ हो, नहीं, सजा मैं भी प्रोसीजर उसकी है, आदत भी उसकी मैं है, प्रोसीजर रजीला, बता हो रहा हूं सकता है कि चोरी रखा वो हो। पेन और कागज लेता है, उस पे तहरीर लिखता है, सुपरिटेंडेंट जेल को देता है कि मेरा ये खत फलां शख्स तक पहुंचा दिया जाए, फलां अदारे तक, फलां अथॉरिटी तक पहुंचा दिए। सुपरिटेंडेंट जेल मैनुअल के मुताबिक उसको नहीं पढ़ने लिखा। का मजाज है, और ताकि उसमें कोई ऐसी तहरीर ना हो जिसमें मुल्क दुश्मनी का हो, तफरकाबाजी का पहलू हो, जिसमें आइन और कानून के खिलाफ कोई बात लिखी गई हो। जब वो इस बात की तसल्ली कर लेता है कैदी की तहरीर से, मतलब ये है कि नहीं लिखा खत, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ने कैटेगोरिकली कह दिया कि ऑफिशियली जो रूल्स कानून जेल मैनुअल का प्रोसीजर है क्वेश्चन उसको तो मेरा अडॉप्ट था कि करते हुए जल्द नहीं से लिखा मुसलसल गया। नाकाम हो रहे हैं, उसकी वजह क्या है? लेकिन अब खत है कि लिखा नहीं लिखा, नहीं लिखा, वो उन्होंने कह दिया ना खुला खत है। खुला खत। अच्छा, खुला खत क्या है और उसके ऑब्जेक्टिव क्या है? एक तो ये है कि जेरे बहस रहे। हाँ, आज देखें ना, हम भी उनको डिस्कस कर रहे हैं कि वो जेरे मीडिया में बहस रहे, इन रहना है मीडिया बस। के अंदर इन रहने का एक फार्मूला है। लेकिन मैं आज भी यही कह रहा हूँ कि अप्रोच किया गया है भारतीय जर्नलिस्टों को कि वो जब मोदी साहब के साथ ट्रंप साहब जो हैं उनका का प्रेस कॉन्फ्रेंस करें तो वहाँ पे बानी पीटीआई सलमान के अब्बू जो हैं उनके बारे में सवाल किया जाए, और उसके बाद फिर हम संभाल लेंगे। उसके बाद फिर हम सोशल मीडिया के ऊपर बताएंगे कि जनाब ट्रंप साहब ने ये कह दिया, और ट्रंप साहब खुद से बना फिर लेंगे, तो बाकी create तो कर झूठ ही लेंगे बोलना बात। है ना। बस एक सवाल पुट हो जाए, वो यस कहे फिर भी ठीक है। जलसे की नाकामी की वजह 1 सेकंड में बता दें, हर बार जुनैद मुसलसल। अकबर साहब, मैंने कुछ नहीं बताना। ओके, जुनैद अकबर साहब जो हैं उन्होंने अपना वीडियो बयान जारी किया, मैं प्रोग्राम से बैठने से पहले देख रहा था, उसमें उन्होंने वजूहात बयान कर दी ठीक है, हैं ठीक और उन्होंने कहा है कि जनाब मैं बहुत सारी तब्दीलियां करूंगा क्योंकि जलसा नाकाम हो गया। उन्होंने तकरीबन इन्हीं अल्फाज में तो नहीं कहा, लेकिन वो जो बयान उन्होंने वीडियो बयान जारी किया है उसमें उन्होंने फरमाया कि जनाब जो भी कम बंदे आने का जिम्मेदार है मैं उन्हें वेख लांगा। 100 बातों की एक बात कि फाइनली वो मन गए ने कि साड़ा जलसा नाकाम हो गया। यहाँ पर हम लेंगे इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।